हाय स्टूडेंट्स, हेलो। ये लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे। ग्रेविटेशंस, आनंद सर, आनंद कोचिंग क्लासेस. So gravitations, next topic here, free fall. This is a rockets. Person is sitting on the rockets. ऐसे actually होता नहीं. For your understanding, ये animation है. तो देखो, is throwing the balls. Ball is falling down. Is the velocities of the rocket is this sides, right? The direction, and ball falling from the height to the moon, right? But ball is falling on the moons. That time moon is attract to the ball toward this force is what is the moon's gravity. Is because of the moon's gravity. And in the atmosphere of the surrounding area of the moon, what is the surrounding area of moon is was vacuum. Surrounding area of the earth is there was a atmosphere, air is there, right? But in surrounding of this moon there is a vacuum there. Vacuum means कोई भी वहां पे यहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है. There is a without any medium, liquid, solid, gases, जब the mediums are there, इसमें से कोई भी वहां पे मीडियम नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? वैक्यूम, राइट? एंड दैट इज अ नो एयर. इट इज अ नो एयर रेजिस्टेंस. जैसा कि when object is falling from the height on the earth, that time air is opposed to its is a upward force. जैसा कि उसको buoyant force भी बोल सकते हो. That is air is not opposite on the moon. No, there is no air, vacuum place. So this ball is fall with gravity. Moon's gravity very fast. Speed of the moon, velocity of moon is greater. Velocity of the ball greater on the moon than the earth. This is called a free fall. Free fall means what is this definition? Maybe ask you your exam. Whenever an object moves under the influence of the force of gravity. Whenever object moves under the influence of the force of gravity. Force of gravity. ये words याद रखना. Force of gravity. Influence. Influence means उसका प्रभाव. Whenever an object moves under the influence of the force of gravity alone. Only gravity. Only gravity. Gravity of moon. Gravity of earth. Gravity of any other planets. That's only gravity of the object. That is a planets. Force of gravity alone. It is said to be falling freely. That is a free fall. Whenever object moves under the influence of the force, it is whenever object fall under the influence of the force of gravity alone, it is said to be what? Free fall. It is said to be what? Free fall. Remember this immediately. Learn the definition without seeing. Tell me without seeing. Close your eyes and say this definition. देखो आपको आता है कि नहीं है, चेक करना है. कोई भी डेफिनेशन हो तो आपको वीडियो पॉज करके उधर ही आपको क्या करना है, उसको बाइट करना है. एक ट्रिक है कि जब आप पढ़ रहे हो उसी टाइम पे आपको डेफिनेशन बाइट होना चाहिए, तो आगे का टॉपिक कोई भी हो तो आपको आसानी से समझ में आता है. दैट्स फॉल इज कॉल्ड अ फ्री फॉल. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखो, वेटलेसनेस. अभी वेटलेसनेस क्या होता है? कि खुद को बॉडी का कोई भी वेट नहीं है ऐसा फीलिंग होना. That is the value of the G in the space station. What is the value of the G? G value, you know, as according to heights, it is decreases. जैसे जैसे हाइट क्या होगा, इंक्रीज होगा, वैल्यू ऑफ क्या होता है, डिक्रीज. स्पेस में इसका वैल्यू कितना होता है? इज द वैल्यू ऑफ जी 0 इन द स्पेस स्टेशन. स्पेस स्टेशन मालूम है आपको? स्पेस ऊपर एटमॉस्फेयर में. जैसे वहां पे एस्ट्रोनॉमर स्पेसक्राफ्ट जाते हैं तो उनको कैसा लगता है? फ्लोटिंग लगता है. हवा में हम क्या कर रहे हैं? फ्लोट हो रहे हैं ऐसा लगता है. दिस कॉल्ड वेटलेसनेस. फीलिंग ऑफ द वेटलेसनेस. व्हाई इज द वेटलेसनेस कॉज इन द स्पेसक्राफ्ट? स्पेसक्राफ्ट में ऐसा उनको फीलिंग क्यों होता है कि आपने को कुछ भी वेट नहीं है, अपने बॉडी का कुछ भी वेट नहीं है. वेट डिपेंड्स अपॉन द मास इनटू व्हाट इज द एक्सेलरेशन. जहां पे एक्सेलरेशन कम होगा तो वेट भी क्या होगा? कम होगा. मींस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एनी ऑब्जेक्ट, मून है या बहुत सारे सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं, तो ये सैटेलाइट लॉन्च करते तो क्या होता है वहां पे? ये सैटेलाइट जो लॉन्च करते हैं तो लॉन्च किए हुए सैटेलाइट क्या होते हैं? देखो, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, राइट ना. उनको एक स्पीड होता है, वेलोसिटी होती है.
वो ऑन द अर्थ, नॉट फॉल दे ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर फॉल होते क्या नहीं है, दे गॉट द स्पेसिफिक टाइप ऑफ द वेलोसिटी, दिस कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और कौन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी उनको दी जाती है और उसी तरह वो क्या करते हैं घूमते हैं। इसका एस्केप वेलोसिटी में हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। तो हम फिलहाल हम पढ़ने पड़ेंगे वेटलेसनेस। इज द वैल्यू ऑफ जीरो इन द स्पेस स्टेशन? नो, इट्स द वैल्यू ऑफ द जी इज 11% decreases. The value of G is only 11% less than the value of on the surface of the earth. 11% less, जैसा कि अभी 100% है, 100% का कितना 11% कम कर दो कितना होता है 89%, तो क्या होगा कम होगा। And why weightlessness cause spacecraft? Weightlessness cause in spacecraft because weightlessness is caused by them being in the state of free fall. They are in a state of the free fall. Only air is opposite to them. Person is just sitting in the lift, where the lift is downwards direction, that times we feel uplift, हमें क्या लगता है हम क्या कर रहे हैं ऊपर, कोई तो हमले को खींच रहा है, ऐसा लगता है ना, फीलिंग होता है ना, that's the weightlessness feeling. या person is going upward, look here, and when is falling what is downwards, that position is there, is a 700 Newton force acting on this person. 700 Newton is a force acting on the body, right, downward direction. At that same time, equal force action and reaction is equal, right? So action is a force is downward direction, that exactly body weight also what is a 700 Newton. दोनों क्या होगा बैलेंस हो रहा है, राइट, और इट इज अ बैलेंस, 700 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन, 700 न्यूटन व्हाट इज अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। यानी कि सपोज यहाँ पे 10-12 लोग यहाँ पे लिफ्ट में बैठे हैं, तो उनका जो पूरा वेट यहाँ पे सपोज कितना 70 न्यूटन है, तो उतना ही फोर्स क्या होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन रहेगा। Look, person is what's going downwards, that time what he feels, going downward, that time she feeling what is uplift, देखो फोर्स इसका क्या हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन हो रहा है, दिस इज द फीलिंग ऑफ द वेटलेसनेस। और एक क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाई डज द स्पेसक्राफ्ट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ? व्हाई डजंट spacecraft fall towards the earth? Spacecraft does not fall towards the earth because of velocity along the orbits. Means when he was in spacecraft, that time velocity is there, this velocity is along the orbits, इसका जो ऑर्बिट है जैसा वो जा रहा है उसी डायरेक्शन उसकी क्या होती है वेलोसिटी। जैसा मून है, मून अपने पाथ में क्या हो रहा है रिवॉल्व हो रहा है, वो क्या उसकी वेलोसिटी होगी, तो वो मून अर्थ के ऊपर फॉल हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी विच डायरेक्शन अलोंग द ऑर्बिट्स। मींस स्पेसक्राफ्ट इज मूविंग इन द स्पेस, दैट टाइम he feel what is the his velocity, that is velocity is along the direction of what is the orbits. Next here, earth and moon is there. Oh, this is our earth and it is a moon. The person is हमें यहाँ पे देखना है मास एंड वेट का डिफरेंस देखना है, क्या देखना है मास एंड वेट, व्हाट इज अ मास एंड व्हाट इज अ वेट, इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। आपको टेक्स्ट बुक में यहाँ पे डिफरेंस करने के लिए पूछा गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट, तो आप यहाँ पे डिफरेंस भी लिख सकते हो, व्हाट इज द डिफरेंस हियर, मून mass and weight both are the different quantity, mass measured in kilogram, weight measured in the newton, mass measured in kilogram, weight measured in the newton। देखो weight is equal to mass into acceleration, acceleration on the earth and acceleration on the moon is different, acceleration on the earth is what in 9.8, 9.8 at the pole is a greater and at the equator is what is a less, but overall over the earth is average taken as a 9.8 value। सपोज आपका 100 kg क्या उसका मास है, तो उसका वेट कितना होगा 100 इंटू 9.8, तो कितना हो गया 980 न्यूटन, कितना होगा 980। अंडरस्टैंड, लेट्स अंडरस्टैंड इज मोर इन डिटेल्स। सेम मास ऑफ पर्सन इज 100 kg ऑन द अर्थ एंड द वेट देयरफॉर इज 980 न्यूटन, हो गया।
100 को हमने क्या किया 9.8 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. बाय दिस फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. तो 100 इंटू 9.8 कितना होता है, देखो कैलकुलेट करो, बुक में सॉल्व करके देखो, यहाँ पे देखो कितना आंसर आता है 100 इंटू 9.8. एंड सेम पर्सन इज ऑन द मून, दैट टाइम मास इज 100. मास कितना है इसका 100 है, लेकिन इसका वेट कितना है 1/6 of the weight of the moon, weight of the earth, acceleration to gravity on the earth. जैसा 9.8 का 1/6 करेंगे, 9.8 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आपको आएगा 1.633 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 100 से, तो आपको मिलेगा 163.3 यानी 162.2. यानी जो वेट है उसका 1/6, जो अर्थ पे वेट है उसका कितना 1/6 देखो, इसको 162.2 को 6 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आएगा 980, या उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना आएगा 162. व्हाई? बिकॉज एक्सेलरेशन चेंज है यहाँ पे. एक्सेलरेशन इज अ डिफरेंट, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी इज अ डिफरेंट. वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ, स्मॉल जी, वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ एंड मून इज अ डिफरेंट. दैट्स व्हाई you got the different here. Mass and weight is a mass on the moon and mass on the earth of the person or any object is the same, but weight is a different. Why? Because the value of the g value is a different on different planet and different objects, right? What is the value of the g on the earth? 9.8, and value of the g on the moon is a 1/6 of the 9.8. That's a 162.2 is the weight on the moon, and 980 Newton is a weight on the earth. Let's see difference between the mass and weight. So let's study here mass and weights. So the first point, mass is the amount of matter present in the object. Amount of matter, कितना matter उसके अंदर है. Your mass, your आप बोलते हैं मुझे 40 kg मेरा weight है, 50 kg, लेकिन वो आपका क्या है, mass है. It's not a weight. The mass is the amount of matter present in the objects. Mass is the amount of matter present in the object. ये first point हो गया, right? First point लिख के रखा है ना, लिख के रखो. Next, weight. Weight of the object is defined as the force with which earth attract the objects. Is a force. Weight मतलब कौन है, force. Force is equal to mass into acceleration. Means earth is attracting to this object towards the earth. And this mass and weight are different on different planets. सन पे देखेंगे आप, यहाँ पे जुपिटर पे देखेंगे, अर्थ पे देखेंगे, तो उनका मास क्या होगा, सेम, बट वेट इज अ डिफरेंट ऑन द डिफरेंट प्लैनेट और डिफरेंट ऑब्जेक्ट. मास 100 है यहाँ पे, वही मास यहाँ पे देखो कितना है 100 है, और सेम मास आप सन पे भी जाएंगे या दूसरे कोई प्लैनेट पे जाएंगे जो मार्स हो या वीनस हो, वहां पे भी जाएंगे तो वहां पे भी आपको 100 kg ही मिलेगा. सन पे जाएंगे, सन पे जाने की कोशिश मत करो, जल जाएंगे पूरे, राइट? सेम इज, बट वेट देखो वहां पे 980 है. सेम वेट में आप जुपिटर पे देखेंगे कितना 2600 बढ़ गया, यहाँ पे ज्यादा है. और नेक्स्ट जैसा कि मार्स वगैरह देखेंगे वहां पे तो 27,500, या सन पे देखेंगे तो 27,500. दैट इज अ ग्रेटर, यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसा है, ज्यादा है, यहाँ पे उससे कम है, और उससे यहाँ पे क्या, जैसा भी शेप वैसा बढ़ते जाएगा वैसा उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, राइट ना? बिकॉज एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मास. मास इंक्रीज, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आल्सो इंक्रीज. गॉट इट? समझ गया सबको गाइस? डू यू अंडरस्टैंड इट्स? ओके, नेक्स्ट सी. नेक्स्ट पॉइंट है मास डज नॉट चेंज विद द प्लेस. जैसे आपने प्लेस देखा, अर्थ पे देखा, जो जुपिटर पे देखा, मार्स, वीनस, अलग अलग प्लैनेट पे देखेंगे तो मास क्या चेंज नहीं हो रहा है, राइट? मास इज द सेम, 100 100 100, सब में 100 होगा, या 10 kg तो 10 kg होगा, राइट? विल नॉट बी चेंज, मास डज नॉट चेंज. बट वेट इज अ चेंज, weight change in a acceleration to gravity. That's a weight is a changes on different object. जैसा आपने यहाँ पे देखा था, अर्थ पे कितना 980 था,
वहाँ पे 2600 हो गया, वहाँ पे 27,000 से हो गया, यानी कि ये क्या हो रहा है, जी वैल्यू चेंज हो गया, दैट्स व्हाई weight is a changes. Third point, SI unit of the mass is what? SI unit is a kg and CGS. दो टाइप के यूनिट है, SI मतलब MKS, CGS सेंटीमीटर ग्राम एंड इज अ सेकंड. SI means standard international. Standard international unit of the mass is what? Kilogram. And standard unit of the any objects in a CGS system is a gram. जैसा हम सेंटीमीटर यूज करते हैं, किलोग्राम हो गया, ग्राम, किलोग्राम यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ग्राम आएगा. टाइम के लिए दोनों सेम है, सेकंड यहाँ पे भी क्या होगा, सेकंड. ऐसा यूनिट यहाँ पे क्या है, न्यूटन है, और सीजीएस क्या है, डाइन, DYNE डाइन. और ऐसा यूनिट क्या है, इसका न्यूटन है, NEWTON न्यूटन. कैपिटल होगा एन, ये साइंटिस्ट का नाम है न्यूटन. तो यहाँ पे न्यूटन जो लिखा है ये राइट है. यहाँ पे सिंगल लेटर यूज करेंगे, आप कैपिटल लिख सकते हो. आपको पूरा नाम लिखना है तो यहाँ पे स्मॉल यूज करना है, स्मॉल लेटर इज अ रूल टू राइट द यूनिट्स साइंटिस्ट नेम के लिए. हाउ इज द क्विज टाइम, आर यू रेडी गाइस? यहाँ पे क्विज टाइम आ गया. क्विज, क्विज क्या जानते हैं आप? क्विज कॉन्टेस्ट, यहाँ पे भी क्विज कॉन्टेस्ट चालू होने वाला है आपका. देखते हैं क्या ऑफ करते हैं यहाँ पे. फाइनल क्विज टाइम. देखो क्वेश्चन यहाँ पे 25 क्वेश्चन दिया है, तो आपको यहाँ पे आंसर देना है. हर एक क्वेश्चन का एक एक सिंगल सिंगल आंसर देना है मुझे. जैसा बेल यहाँ पे आवाज आता है तो आपको यहाँ पे आंसर देना पड़ेगा. लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1. The value of the G on the earth is, value of G is on the earth is, देखो start time, time started, you should be answer there. Value of G on the earth is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. करेक्ट है क्या? यहाँ पे क्या लिखना है, 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो आपने फाइंड किया था वो लिखो. या 9.8 लिखेंगे तो भी राइट है. ओके, नेक्स्ट. The value of capital G 6.673 into 10 raised to minus 11, राइट ना? बिल बच गया, बोलो आंसर क्या है. 6.673 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट. Next is if the mass increase there. आपको आंसर देना यहाँ पे. If the mass increase, force also increase. Start time. Time start, go to the response. See, yes. What is the answer you are? Tell me the correct answer. क्या आंसर?
the distance double, force becomes distance double, force becomes distance double किया 2 times increase किया, then force will be what? Force क्या होने वाला है? Decreases 4 times, right ना? स्क्वायर है ना उसका, 2 का स्क्वायर, डबल का स्क्वायर कितना 4, तो कितना होगा बोलो? ऐसा चिल्लाते ना क्लास में तुम लोग, जोर से चिल्ला रहा है ना, आंसर आना चाहिए वहां पे। डिक्रीजेस 4 टाइम्स, if the distance double, force become आंसर आने में जरा टाइम लग रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा मजा लेते हैं। चीयर हो गया, बू, साइलेंस पूरा, चीयर। तब तक कॉपी नोटबुक यूर, स्टार्ट टू कॉपी इट्स। You take the time. Hello guys, little bit wait here because sharing the screen is a problem arises. Okay, so लास्ट सेक्शन में ऐसा प्रॉब्लम हुआ था वहाँ पे, वैसा यहाँ पे भी कुछ हो रहा है, गड़बड़ है। तो वेट करते हैं इसको। फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। तो all of you remember that is hello students, all of you remembers, जैसा साइंस है, साइंस में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो फिलहाल आपको जितना भी टॉपिक मैंने पढ़ा है, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करते रहो। जितने डेफिनेशन जैसा कि मास हो गया, वेट हो गया, न्यूटन लॉ, न्यूटन यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन हो गया, सेंटीमीटर फोर्स है, ऐसे बहुत सारे डेफिनेशन यहाँ पे है। तो आपको क्या करना है, उसको पेज में, एक पेज में उसको नोट डाउन करना है। पेज पे नोट डाउन करके उसको क्या करना है, बाद में जहाँ पे आप बाहर कभी भी घूमने के लिए ऐसे जाते हो तो उसको क्या करना है, बाय करना है। ये आदत आपको पहले से लगा के रखो। या मोबाइल में, अभी ये मोबाइल में है तो डेफिनेशन वहाँ पे आपको चाहिए, तो ये लेक्चर भी आपके पास है, तो आप देखते कि कभी भी कहाँ से भी उसको क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। ओके, तो ये अपना स्टडी जो है, आपको टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज अभी 10 के बोर्ड एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, तो उसके लिए आपको अच्छी से तैयारी करनी पड़ेगी। और ये तैयारी कब होगी, जब आप स्टार्टिंग से, अभी से आप क्या करेंगे, उसका बार बार उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपको ये जरूर आएगा। तो डोंट फॉरगेट इट टू डू प्रैक्टिस हियर। ओके, एंड वन मोर थिंग्स, आपको लिख के प्रैक्टिस करना है। जो भी आप डेफिनेशन या कुछ लर्न करते हो तो उसको क्या करना है, लिखना है। लिखने से आपका हैंड राइटिंग इंप्रूव होता है, और जो चीज़ आपको बैड नहीं होती है वो अपने लिखने आदत से क्या होता है, अपने आप आ जाती है। तो ये भी आप आपको हैबिट रखो, आपको हैबिट डालनी है इसकी। ओके, तो हैबिट्स जो भी है आपकी, वो चालू रहनी चाहिए।
if the mass is a triple value of g पे क्या इफेक्ट होगा देखते हैं. Mass is a triple, the value of the g is a mass triple, value of the g will be what is a g value 3 times से होगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट. Remains what is a constant. If the mass triple, well, object mass g is not depends upon the mass of the objects. If the mass triple, value of the g is remains what is a constant. Okay. Next, if the mass increase, force is equal to mass g into m1 into m2 upon what is the r square. तो ये भी force भी क्या होने वाला है, increase होने वाला, right? Force increases. Formula for the force between the two bodies. All of you know this formula. F is equal to g into m1 into m2 upon r square. सिंपल फॉर्मूला है, आपको अभी तक बायोटी हुआ, राइट. बच्चे अच्छे हैं तो आपको अभी तक पूरा बायोटी हुआ होगा, राइट. तो F इक्वल g m1 into m2 upon d स्क्वायर या r स्क्वायर चलेगा. इफ डिस्टेंस डबल फोर्स विल डिक्रीजेस 4 टाइम्स. फोर्स की इफेक्ट क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला 4 टाइम्स. जैसा 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, बिकॉज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. दैट इज इनवर्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. दैट इज आपके पास 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना, 4 टाइम्स क्या होगा, वो डिक्रीज होगा. तो डबल्स फोर्स बिकम्स 1/4 टाइम, यानी 4 टाइम्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट. नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ द जी एट द पोल्स इज इंक्रीज एट 9.83, राइट ना. 9 कितना 83 है, राइट ना. 9.83. ओके. नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ द जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. अर्थ पे सेंटर कितना है, जैसा सब व्हेन यू गोइंग डाउनवर्ड 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 डीप 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 जाने के नहीं आपको डीप डीप, जैसा यानी सेंटर पे सा अर्थ का मास का होता है डिक्रीज. एट द सेंटर वो वैल्यू कितना होगा, 0. सो वैल्यू ऑफ जी is at the center of the earth is what, 0 meter per second square. Free point, free fall. That point is called free point. The force with which earth pull you is called, the force with which pull you is called, क्या बोल रहे, ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स और वेट. डैश एंड डैश रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर. क्या है, कांस्टेंट एवरीवेयर. बोलो आंसर, बोलो बराबर. mass and what is the capital G? Mass is everywhere constant. The value of the capital G is everywhere constant. Value of G at equator is, निकाला वैल्यू ना, दोनों वैल्यू इक्वेटर और पोल पे दोनों दिया था आपको. कितना 9.78, वहाँ पे 9.83, यहाँ पे 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है. The earth attract a body with force of 10 Newton. Then the body attract the earth with a force of 10 Newton. Then the body attract the earth is कितना होगा, अर्थ का फोर्स कितना होगा, कैलकुलेट करो. Newton. Both will attract to every body is attracted to every other body with a force. This is the same force of 10 Newton. The earth also attract with the force of 10 Newton. Feather and a coin released simultaneously from the same height do not reach the ground at the same time due to दोनों का क्या है, मास यहाँ पे डिफरेंस होगा और ये रेजिस्टेंस क्या होगा, दोनों का डिफरेंट है. When feather and what is a coin
the falling what is the simultaneously at the same time, then they do not reach the ground at the same time due to the air resistance. हवा का झोंका, हवा का रोकना. When a spaceship is a to Earth, radii distance from the center of the Earth is g. Is dash. When spaceship is to Earth, radii means Earth का radius से उसका क्या double radius है. Distance from the center of the Earth is 1/4 times, right? 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 1/4 होगा. 3 point. When object fall under the influence of the Earth gravity alone, its motion is called free fall. Right ना? Free fall होता है ना? SI unit of the G is a Newton meter square. बोलो 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 तुम लोग बोलना है. आपको पॉज दिया है, पॉज किसके लिए दिया है? आपको आंसर आने के लिए. बुक में देख के आंसर नहीं बताने का है. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, तुरंत बुक में देखना शुरू करते हैं. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. Placed on the earth exact 90 degree to the direction of the moon, experience the tide dash tides. 90 डिग्री पे कौन सा होता है, हाई टाइड या लो टाइड्स? बोलो. या कपड़े धोने का टाइड. 90 degree place on the earth exactly 90 degree to the direction of the moon. लो टाइड्स परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पे 90 है और 90 डिग्री से जो होता है वो क्या, लो टाइड्स. The relation between the G and capital G. G is equal to Gm upon R square. Right है. Next SI unit of the weight is, जो फोर्स का है वही वेट का है, बिकॉज फोर्स और वेट दोनों अलग है क्या? नहीं है, बोथ आर द सेम. सो SI unit of the weight is what? न्यूटन. न्यूटन स्मॉल नाम लिखना है पूरा तो क्या स्मॉल लेटर लिखना, और एक सिंगल लेटर यूज करना है आपको तो एन कैपिटल आना चाहिए. रिमेंबर दिस. एज वी गो फ्रॉम द अर्थ इक्वेटर टू द पोल्स, as we go from the equator to the poles, the value of G क्या होगा? We go from the equator to pole. इक्वेटर पे लो है, पोल पे ज्यादा है, तो इक्वेटर टू पोल वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा. राइट ना? क्या होगा? इंक्रीजेस. राइट. 3 point. पॉइंट मिल रहा है आपको. टाइप्स $300. कैटेगरी 5 रिस्पॉन्स हियर. As altitudes increase, value of G dash. Altitude increases, value of the G is decreases. Right now, value of G is decreases. Right. Gravitational force is inversely proportional to distance and directly proportional to product of masses. Square of distance. Right. Final quiz time. This time is over. Now start the next topic here. Type B. A टाइप कंप्लीट किया, अभी बी टाइप स्टार्ट करेंगे. G is equal to Gm upon R square. That's you know relation between the gravitational acceleration to gravity और gravitational constant. Capital G क्या है? Capital G is a gravitational constant और small g क्या है? Small g is a acceleration due to gravity. याद रखो, सबको याद चाहिए. We remember this. Okay. Next, W is equal to F is equal to M into G. So W is equal to F into G M upon क्या है? R square. राइट ना? फोर्स क्या है? G M upon R square. That is V is equal to U plus AT is the first kinematic equation.
Next, h ut plus half it square is second kinematic equation. Third is a v square is equal to u square plus 2as. यहाँ पे s is a displacement, v is a final velocity, u is a initial velocity जो start होती है वो velocity u डिपेंड्स आपका 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस के ऊपर. फर्स्ट काइनेमेटिकल, सेकंड काइनेमेटिकल, थर्ड इक्वेशन, थर्ड काइनेमेटिकल. इससे हमने वैल्यू ऑफ जी निकाला था 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फॉर मून के लिए कितना आता है 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट ना. 1/6 है वो. वैल्यू ऑफ द जी ऑन द अर्थ एंड वैल्यू ऑफ द जी on the moon is different. Calculate the gravitational force due to the earth on Mahendra. If the mass is a 75 kg, mass of earth is a 6 into 10 to 24, radius of the earth is 6.4 into 10 to 6 and g is equal to 9.77. यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है ग्रेविटेशनल फोर्स. F इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, g इन महेंद्र, अपना महेंद्र सिंह धोनी अर्थ के ऊपर बैठा है और उसका क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है. वो फोर्स कितना आएगा देखो, पर एक गिवन लिखना है. कोई भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, when you writing, when you solving this, you should be write the given information from the question. Mass of earth is given, radius of earth is given, mass of Mahendra given, that's the object. Mahendra कौन है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है ना, लिविंग हो नॉन लिविंग हो उसको हम ऑब्जेक्ट ही बोलेंगे. एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी 9.77 दिया है, तो यहाँ पे फोर्स निकालना आसान होगा. देखो, to find here force is equal to formula for mass into acceleration, and force is equal to gmm upon r square. So solution, f is equal to sub value putting what you got 6.4 into 6 का स्क्वायर करो, नीचे डिनोमिनेटर जो उसका स्क्वायर करो पहले, 6.4 into 6 का डबल हो गया यहाँ पे, तो सॉल्व होगा यहाँ पे 6.67 10 to -11, ये 40.96, अभी 10 10 10 दिख रहा है, इसको एक साथ लो, यहाँ पे प्लस है तो ऊपर जाएगा माइनस होगा. सो टेक इट अप. इसको पहले सॉल्व करना है आपको. 9.77 इंटू 75 अपॉन 40.96, ये सॉल्व हो गया. इतना आ गया 732.75. F is approximately equal to 733 Newton. The force, gravitational force due to the earth on Mahendra is 733 Newton. That's why is falling on the gravitational force is 733 Newton. This force is acting on a Mahendra. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट मतलब यहाँ पे इनिशियल हो गया 0. ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ इज 733 न्यूटन. व्हाट इज द स्पीड ऑफ महेंद्रा आफ्टर 1 सेकंड. स्पीड निकालना है, यहाँ पे फोर्स दिया, फोर्स मतलब यहाँ पे क्या दिया आपको, वेट दिया है. फोर्स कितना 733, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, मास भी यहाँ पे कितना दिया 75 kg, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना आ रहा है 9.8, राइट ना. इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया 0, स्टार्टिंग है. स्पीड ऑफ द महिंद्रा आफ्टर 1 सेकंड, यानी v निकालना है, फाइनल वेलोसिटी, मास m, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड. देन फाइंड हियर फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 3 काइनेमेटिक इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस 80, s इज इक्वल ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. ये बहुत सारी इक्वेशन है, इसमें से हम फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, v इज इक्वल टू u प्लस 80. तो उसके पहले हमें a निकालना पड़ेगा. A means acceleration is equal to force is equal to mass into acceleration है, तो A is equal to क्या हो गया F upon m. Force is equal to mass into acceleration, तो A is equal to क्या हो गया F upon m. Force दिया है, m दिया है, तो पहले A निकालेंगे. Let's find first A. A is equal to क्या होगा force, force कितना है 733 upon महेंद्र का मास कितना है 75, विराट कोहली से कम है. इसको सॉल्व करेंगे ए टाइप में, आता है सबको डिवाइड. कितना है 9.77. अर्थ पे कितना हो, यानी कि वो कहाँ पे इक्वेटर पे पोल पे है, इक्वेटर पे रहेगा, बिकॉज वी आर लिविंग इन इंडिया. कितना 7.33. ए इज इक्वल टू 9.77. नाउ फाइंड v. v इज इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन इज 9.77 एंड t कितना है 1. 0 वैल्यू प्लस यहाँ पे a वैल्यू 9.77 इंटू 1, तो v इज इक्वल कितना आ गया 9.77 मीटर पर सेकंड. दैट इज अ फाइनल स्पीड. स्पीड ऑफ द महिंद्रा इज 9.77 मीटर पर सेकंड, राइट.
let's stop to here. All of you complete it. दोनों लेक्चर आज देख लेना, वहां पे जितना भी होमवर्क होगा आपको कंप्लीट करना है, राइट? एंड आपको कल मुझे सबमिट करना है. ओके, लेट्स स्टॉप हियर. बाय बाय, टेक केयर.